جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عاطف مجید، ڈپٹی سیکرٹری جنرل پالف، آج کی اس تقریب میں جو ہم لوگ نصیر ترابی صاحب کی یاد میں ایک آج ہم بیٹھ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نصیر ترابی صاحب جو کہ پاکستان کے اور بر صغیر کے اردو کے نامور شاعر تھے، 10 جنوری 2021 اس سال میں 74 سال کی عمر میں کراچی میں دل کا ان کو دورہ پڑا، جو کہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ آج ٹھیک 5 دن بعد ہم ان کی یاد میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے جو شرکاء ہیں وہ آسٹریلیا سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمیں امریکہ سے اور یو اے ای سے بھی کچھ لوگ جوائن کریں گے۔ اب میں چلتا ہوں، باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ مصعب بن عمیر، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر کے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میں ایڈیلیڈ سے ڈاکٹر محمد محسن علی آرزو صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ترابی صاحب یاد میں اور ان کے اعزاز میں اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ عاطف، تمام حاضرین مجلس، ڈاکٹر رئیس سمدانی صاحب، ڈاکٹر رئیس علی صاحب، افضل رضوی صاحب اور تمام حاضرین مجلس کو سلام۔ نصیر ترابی صاحب کے بارے میں کچھ کہنا میں اپنے لیے سعادت اور جسارت سمجھتا ہوں۔ ان کی پیدائش حیدرآباد دکن میں ہوئی اور تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان تشریف لائے، اور شعراء آفاق غزل ان کی جو سکوت ڈھاکہ کے موقع پر انہوں نے کہی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ اس کے ساتھ ان کی 2 کتابیں، ایک عکس فریادی اور ایک شعریات کے نام سے اثاثہ ہیں۔ بہت سے مشاعروں میں بہت ہی اعلیٰ نظامت کے فرائض انہوں نے انجام دیے، اور تحقیق میں بھی اردو ادب کے حوالے سے بہت پیش رہے۔ تو ان موضوعات پر میں نے کچھ اشعار کی صورت میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے، تو میں ان کی نظر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے حضور پیش کرتا ہوں۔ میری آواز آپ سب لوگوں تک آ رہی؟ جی بالکل، شکریہ۔ تو دکن سے جو تہذیب کا دیوانہ چلا تھا، دکن سے جو تہذیب کا دیوانہ چلا تھا، وہ شہر کراچی میں کہیں آ کے بسا تھا۔ کردار میں پرکھوں سے وراثت میں حیا تھی، بے شک
کردار میں پرکھوں سے وراثت میں حیا تھی، افکار پہ ایک غیرت قومی کی ردا تھی، اس ملک کے بٹ جانے کا افسوس بہت تھا، اس ملک کے بٹ جانے کا افسوس بہت تھا، بنگال کے کٹ جانے کا افسوس بہت تھا، ایک غم کی اداسی تیری آنکھوں سے عیاں تھی، لہجے کی کسک روح کے زخموں کا نشاں تھی، آواز میں انداز میں تقریر میں یکتا، شوکت تھی تیرے بازوئے تحریر میں یکتا، اردو کو سنوارا تیرے افکار و سخن نے، تنظیم نے، تحریر نے، لفظوں کی چبھن نے، اور یہ کیونکہ وہ نظامت بھی کرتے تھے تو اس حوالے سے کہ لہجے میں تیرے شوق نظامت کی کماں تھی، لہجے میں تیرے شوق نظامت کی کماں تھی، الفاظ میں شائستہ محبت کی اماں تھی، اور جو ان کی دو کتابیں ہیں عکس فریادی اور شعریات، اس کو مضمون میں باندھا ہے کہ تھی عکس میں تحریر کے فریاد کشائی، تھی عکس میں تحریر کے فریاد کشائی، اشعار میں تحقیق کی آیات نمائی، جو شہر کراچی میں نصیر آ کے بسا تھا، جو شہر کراچی میں نصیر آ کے بسا تھا، اردو کا علم تھا وہ محبت کی صدا تھا، جب تک رخ خورشید میں تنویر رہے گی، جب تک رخ خورشید میں تنویر رہے گی، اردو میں نصیر آپ کی تحریر رہے گی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا تاکہ تمام اہل علم سے مستفید ہونے کا مجھے بھی موقع ملے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محسن علی صاحب۔ اس ملک کے کٹ جانے کا افسوس بہت تھا، بنگال کے کٹ جانے کا افسوس بہت تھا۔ بے شک ترابی صاحب کی وہ نظم جو کہ انہوں نے سکوت ڈھاکہ کے موقع پہ لکھی تھی، وہ ان کی بہت زیادہ یاد رکھے جانے والی نظموں میں سے ایک ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر مفضل محی الدین صاحب سے، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پالف کے، کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ جی مفضل صاحب۔ بہت شکریہ عاطف۔ سب سے پہلے تو میں صدر پیلف افضل رضوی صاحب کا اور منتظمین پیلف کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں خود بھی منتظمین میں شامل ہوں، لیکن میں پھر بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس موقع پہ اظہار خیال کرنے کے قابل سمجھا۔ یہاں پہ ماشاءاللہ اردو زبان کے بڑے محققین اور بہت جید ادیب موجود ہیں، ان کے مقابلے میں ناچیز جو ہوں، ایک اردو زبان کا ادنا سا طالب علم ہوں، ایک اردو ادب کا۔ بس یوں سمجھیں کہ کچھ شاعروں سے، سخنوروں سے اور ادیبوں سے ایک محبت ہے جو مجھے اس پاکستان آسٹریلیا لٹریری فورم کے پلیٹ فارم کی طرف ہمیشہ کھینچ لاتی ہے۔ تو نصیر ترابی صاحب جو ہیں ایک اردو کے بہت بڑے شاعر تھے۔ میرا اس میں ماننا ہے کہ جو ادیب اور شعراء ہوتے ہیں وہ ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں، اور نصیر ترابی صاحب ان شعراء اور ادیبوں میں سے تھے جو واقعی صحیح معنوں میں انسانی جذبات کی ترجمانی کرتے تھے۔ کیونکہ اگر کوئی مصور ہوگا تو اپنے جذبات کی ترجمانی اپنے شاہکار سے کرے گا، موسیقار اپنے جذبات کی ترجمانی اپنی موسیقی سے کرے گا، ایک ادیب اور شاعر اپنے جذبات کی ترجمانی تو کرتا ہی ہے، لیکن وہ ہم جیسے بہت سے نابلد لوگوں کو جو اچھے شعر کیا برے شعر بھی شاید نہیں کہہ سکتے، ہمارے جذبات کو بھی ترجمانی دے دیتے ہیں۔ تو نصیر ترابی صاحب ان لوگوں میں سے تھے، اور تھوڑی سی روشنی تو
डॉक्टर साहब ने उनके ऊपर डाली। मैं भी उनकी सवाने उम्री पे थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ कि उनकी पैदाइश 15 जून को हैदराबाद दक्कन, जो कि अदब का और तहजीब का मरकज होता था हिंदुस्तान में, वहाँ हुई। और उनके वालिद अल्लामा रशीद तुराबी एक खतीब थे। और ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि उन्होंने वो अपनी इनफरादियत कायम रखना चाहते थे। उनके अंदर भी बहुत आला खतीब बनने की खूबियां मौजूद थी और उनके पास अपने वालिद साहब एक तरह उनके उस्ताद भी थे वो, लेकिन उन्होंने अपनी इनफरादियत को उभारने के लिए उन्होंने शेर व शायरी का वाला रास्ता इख्तियार किया और उसमें नाम पैदा किया। और उनके बारे में कुछ एक तहरीर थी बीबीसी की जो कि 2012 में शाया हुई थी। तो उनकी वो उसमें एक बीबीसी के एक लिखारी आरिफ वकार साहब का कहना था कि वो कहते थे कि शेर कहने के लिए 5 अनासिर को वो ज़रूरी करार देते थे: मौजू व तबा, शेरी मुताल्ला, जुबान आशनाई, ख्याल बंदी और मश्क सुखन। तो ये 5 अनासिर वो समझते थे अच्छे शायर के लिए, शायरी करने के लिए इनको वो ज़रूरी समझते थे। लेकिन वही एक खूबसूरत बात ये है कि हम अगर फैज़ अहमद फैज़ को देखें, और मौसीकी भी बहुत सारे लोग इस बात पे थोड़ा समझते हैं कि इनकी ज़्यादा जो है आम तबके में जो है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अदब हर इंसान का शौक नहीं होता, लेकिन जब एक ड्रामे में इनकी गज़ल को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया गया तो उसके बाद, लेकिन हम अगर सोचें कि मौसीकी और अदब और गज़ल और नज़म का चोली दामन का साथ है। अगर हम फैज़ की मशहूर गज़ल या नज़म मुझे अब ये नहीं याद, लेकिन फैज़ की मशहूर कलाम है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो मलका तरन्नुम नूरजहां से ज्यादा अच्छी ना किसी ने गाई या ना कभी कोई गाएगा। तो इसी तरह ये है कि वो खुद मुशायरों में आखिरी दिनों में जब वो जाते थे तो उनसे फरमाइश की जाती थी कि आप वो हम सफर था, और फिर उसका सियाक़ व सबाक लोगों को उस वक्त मालूम हुआ। जैसे फैज की नज़म है कि हम के ठहरे अजनबी कितनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मदारातों के बाद। उसमें एक ये भी मिसरा है कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। और इसी तरह इन्होंने भी बाद में जब सियाक़ व सबाक समझाया तो इनका अदबी कद और बड़ा हो गया। इन्होंने कहा कि सकूते ढाका, और सकूते एक छोटी सी बात सकूते ढाका के बारे में कि मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसकी पैदाइश सकूते ढाका के बाद हुई है। तो मैं जब अपने वालिदैन से ये पूछा करता था कि सकूते ढाका के बारे में आपके उस वक्त क्या जज्बात थे, तो वो कहते थे कि ऐसे ही जज्बात थे जैसे कोई आपका प्यारा जहाने फ़ानी से रुखसत हो जाता है। उस वक्त ऐसे ही जज्बात थे। और इसीलिए रशीद तुराबी साहब ने उस वक्त ये कलाम अपना जो है कि वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई ना थी। और उनके इंतकाल के ऊपर ये कितनी खूबसूरत बात है, बहुत सारे लोगों ने ये मिसरा जो है सोशल मीडिया पे शेयर किया उनके जाने के बाद कि अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो इसी खूबसूरत शेर पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और एक दफ़ा फिर आप सबका आज की तकरीब में शिरकत करने का, आने का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन साहब। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शिकागो से हमें जॉइन किया है मोहतरमा गौसिया सुल्ताना नूरी साहिबा ने। मोहतरमा गौसिया साहिबा, आपको मैं खुशामदीद भी कहता हूँ और साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि आज की तकरीब के हवाले से आप भी हमें अपने ख्यालात से नवाजें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है ना? जी, बिल्कुल। जी, मुझे शामिल करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। जब मैं नसीर तुराबी साहब के बारे में थोड़ी-सी रिसर्च कर रही थी। सॉरी, क़ताए कलामी पे माज़रत, अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर लें तो मैं आपको स्पॉटलाइट में ले लूँगा। हाँ, मैं देख रही हूँ, मैं पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। देख रही हूँ मैं, 1 सेकंड दीजिए, या तो फिर ऐसे ही चलने दीजिए, आ जाएगा वो। ना हो सका तो ऐसे ही चलने देंगे, लेकिन अगर आप कोशिश कर लें। हाँ,
हाँ, सॉरी फॉर इससे इंटरप्शन। पहले जी, तो ये क्या है कि मैं नसीर तुराबी साहब पर थोड़ा-सा इधर-उधर रिसर्च कर रही थी, क्योंकि अब हम अमेरिका में हैं तो ये नाम तो बहुत सुना हुआ था। एक मुझे अजीब-सा लगा कि एक अदबी चिराग लीजिए आज फिर एक गुल हो गया। 2021 की ये न्यूज़ पहली न्यूज़ थी। बहुत अफ़सोस हुआ और अमीर मीनाई का एक शेर बार-बार ज़हन में आने लगा, हुए नामवर बेनिशां कैसे-कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे-कैसे। और अदबी जब लोग गुज़र जाते हैं या समाजी लोग गुज़रते हैं तो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा नुकसान होता है कौम का, लेकिन वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। उनके जाने के बाद एक और उनकी लाइफ़ शुरू होती है। मुझे जो महसूस होता है और उनका जो अभी आपने फरमाया वो हमसफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी, उसके पीछे एक किस्सा है मेरे पास। हम अपने बच्चों को यहाँ उर्दू सिखाने के लिए पाकिस्तानी ड्रामे ज़रूर दिखाते हैं और ताकि उर्दू इम्प्रूव हो, क्योंकि उर्दू का फ़ुक़दान है और हम कोशिश करते हैं कि हमारी औलाद किसी तरह अपनी ज़बान को पकड़े। तो अगर बोल भी नहीं सकते तो कम से कम समझ सकें वगैरह-वगैरह, लेकिन बोलते हैं। लेकिन जब मैं ये उनके ड्रामे दिखाती थी तो उसमें एक ड्रामा सामने आया था हमसफ़र, और उसका टाइटल सॉन्ग यही था जो अभी आपने फरमाया। तो मुझे अच्छा लगा कि अरे ये, और मुझे ये महसूस हुआ कि बड़ा शायर वही होता है जो उसके नाम से पहले उसका कलाम बाहर चला जाता है। नाम तो बाहर बाद में कौन है की रिसर्च करता है बंदा, ये कितना अच्छा शेर है का मतलब है वो बहुत बड़े कामयाब शायर गुजरे हैं। अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत अता फरमाए। तो वो मुझे पाकिस्तानी ड्रामे को मैंने फिर देखा, मैंने सोचा यही नसीर तुराबी है कि नहीं है। तो वाक़ई मुझे फिर वो पता चला कि जून 1945 में हैदराबाद दक्कन में, जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पैदा हुए थे। अब ये पार्टीशन वाली बातें तो अलग सी हैं। इसके बाद जो वहाँ 1962 में से उन्होंने थिंक शायरी का आगाज़ किया था, फिर अब 10 जनवरी 2021 में कराची में सुपुर्द खाक हुए हैं। लेकिन इनका मजमूए कलाम अक्स फरियादी की मैं तलाश में हूँ कब मिलेगा। और हम तो जो है अजीब सा लगता है जब मुसलसल देखिए 2020 हम सिर्फ यही सुनते आए कि बड़े-बड़े लोग आहिस्ता-आहिस्ता, और एक सैलाब आया और इतने लोग चले गए। अभी तक मैं ये नहीं कर पाई हूँ कि मैं माइक पर तो हूँ लेकिन कैमरे पे नहीं आ सक रही हूँ, लेकिन इट डज़न्ट मैटर एज़ लॉन्ग एज़ आप लोग मुझे सुन रहे हैं। जी, जी, आपकी राइट, बात सुन रहे हैं। जी, जी। जी, 2 मिनट और लेती हूँ। तो वो जो पार्टीशन के वक़्त वो पाकिस्तान चले गए थे, ग़ालिबन 62 से शुरू किया। ईस्ट पाकिस्तान के सेपरेट होने के बाद इन्होंने जब जो भी लिखा वो जो है अदब का एक महर दरख्शां बना है। वो जो हालात से गुज़रे हैं या देखे हैं, तो वो इसके बाद वो कहते हैं ना, बड़ी अजीब-सी बात लगती है शायर को, जब बड़ी ठेस लगती है तो उसकी शायरी बहुत निखर जाती है। बड़ी खुदगर्ज़ाना बात है ये, बहुत खुदगर्ज़ बात है, लेकिन 1 सेकंड मेरे ख़्याल में मैं आ सकती हूँ। और एनीवे, तो बहरहाल मैं ये कहूँगी कि मुख़्तसर सी बात ये है कि मिलने की तरह वो मुझसे वो पल क्या है, वो पल भी भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुक़द्दर नहीं मिलता। इतना शाहकार है उनका, मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुक़द्दर नहीं मिलता। कुछ रोज़ और एक है, कुछ रोज़ नसीर चले आओ, आओ चलो घर पर रहा जाए, लोगों को ये शिकवा है घर पर नहीं मिलता। मैं दस्त बदुआ हूँ शऊर ज़ात ख़ास में कमाल ये नसीर तुराबी साहब, परवरदिगार सुखनतराज लोगों का जो अंदाज़ रहा है, जो हमारे लिए छोड़ गए हैं, परवरदिगार उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता हो। अब इसके बाद मुझे क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि उनके कलाम को मैं किस तरह हासिल करूँ, किस तरह पढ़ूँ, क्योंकि अमेरिका में उर्दू के सामान बहुत कम मिलता है। हम लोग तो बल्कि इस नई आपकी तकनीक के शुक्रगुज़ार हैं कि हमें आजकल मिल रहा है, हमारे ऑनलाइन सब प्रोवाइड हो रहा है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और ये जो कोरोना का जो मुस्बित पहलू है वो यही है कि मैं इस वक़्त एक स्क्रीन पर बात कर रहे हैं, और बस मैं दुआए मग़फ़िरत करती हूँ। दस्त बदुआ हूँ, परवरदिगार उन्हें मग़फ़िरत अता फ़रमाए।
اور میں افضل رضوی صاحب، ڈاکٹر افضل رضوی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے شامل ہونے دیا. مجھے بہت اچھا لگا جب نصیر ترابی کا نام آیا تو میں اتنا پہچان نہیں رہی تھی، لیکن جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے لگا کہ یہ بندے سے ہم واقف ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے ایک شاعر ہونے کی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے بھی. اور وہ گزر گئے لیکن وہ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ انسان جب جانور بھی چلتا ہے تو اپنے پیچھے کچھ نشان چھوڑ جاتا ہے، اور جب یہ ادبی بندے تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اختتام کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ نوازش آپ لوگوں کے مجھے شامل رکھنے کا. جی بہت بہت شکریہ بیک ٹو یو. محترمہ صاحبہ. مائی پلیجر، مائی جیسا پلیجر. کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کے گرائی تھے، یعنی کہ وہ آپ کے گاؤں سے تھے وہ، اور آپ تو حیدرآباد دکن سے تھے. تو جی اور جی میرے شہر کے تھے تو مجھے اور زیادہ دلچسپی بڑھ گئی تھی. جی بالکل، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ادبی لوگ چلے بھی جائیں تو میں ان کی یاد میں پروگرام سننا چاہوں گی. میں اسکرین پر نہیں ہوں لیکن پروگرام سنوں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ادبی لوگ چلے بھی جائیں تو ان کی یاد جو ہے ان کے کلام کے صورت میں زندہ رہتی ہے، اور آج کی ہونے والی بے تقریب شک. کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. بہت شکریہ. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب میں جناب ارشد قریشی صاحب سے جو کہ ڈائریکٹر ہیں ہم سماج ٹی وی کے، ان سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے وہ ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور نصیر ترابی صاحب کے حوالے سے افضل رضوی صاحب کا بہت شکریہ. بہت اچھا اجلاس ہے، اور بہت ملال ہے، بہت دکھ، بہت تکلیف کہ گزشتہ برس اس برس ادبی شخصیات اس طرح اٹھتی جا رہی ہیں کہ بہت سی محفلیں اب یتیم سی محسوس ہونے لگی ہیں. استادوں کی طرح تھے نصیر ترابی صاحب. آرٹس کونسل میں 2 بار ان سے ملاقات ہوئی تھی، ایک دفعہ آرٹس کونسل میں اور ایک دفعہ کوئی ایک اور تقریب تھی اس میں ملاقات ہوئی تھی. بہت شفیق، بہت اچھے. میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے کہ اپنے سے کوئی چھوٹا بھی ملنے آتا تھا تو ملتے ہوئے، ہاتھ ملاتے ہوئے صوفے سے اپنی نشست سے تھوڑا سا اٹھ جایا کرتے تھے، چاہے چھوٹے سے ملے اور چاہے بڑے سے ملے. اور جو یہ ابھی ذکر ہو رہا تھا جو ہم پہ ان کی غزل جو ٹائٹل بنی تھی، بہت عجیب اتفاق ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ، کئی ادبی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے شہر میں ہوتی ہیں لیکن ان کے انتقال کے بعد ہم ان کے حوالے سے جاننا شروع کرتے ہیں، ان کی زندگی میں اتنا نہیں. جب ان کی یہ غزل پہلی بار سنی تھی تو ایک تجسس تھا کہ یہ جو ہم پر ٹائٹل سانگ بنا ہے اس سے پہلے کسی نے اس کو گایا. تو اس حوالے سے انہی سے جب اس نشست میں عباس جعفری، عقیل عباس جعفری صاحب بھی تھے، تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرے پڑوس میں ہی عابدہ پروین رہتی ہیں اور سب سے پہلے انہی نے اس کو گایا تھا. ہم ٹی وی نے جب اس کو شروع کیا اور ٹائٹل سانگ بنایا تو ان کو کاپی رائٹس کا اجازت نامے کی ضرورت تھی، اور انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ غزل لکھی کس نے، کیونکہ بڑا نام ہے عقیل عباس جعفری صاحب کا. ان سے رابطہ کیا گیا، محقق ہیں، انہوں نے پھر بتایا کہ یہ نصیر ترابی صاحب نے لکھی ہے. پھر نصیر ترابی صاحب نے کہا کہ وہ میرے پاس آئے اور کاپی رائٹس کی میں نے انہیں اجازت دی. ابھی کوئی صاحب جس طرح بی بی سی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو رضا علی عابدی صاحب سے اس حوالے سے ایک دفعہ بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ لڑکپن سے، رضا علی عابدی صاحب بھی کراچی میں ہی تھے، تو یہ لڑکپن سے مباحثے اسکول وغیرہ میں مباحثوں میں حصہ لیتے تھے، کیونکہ رشید ترابی صاحب کے صاحبزادے تھے، وہ بہت اچھا بولنے والے، بہت اچھے تقریر کرنے والے تھے. تو جب انہوں نے پہلی دفعہ مباحثے میں حصہ لیا تو اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی، تو بہت تعریف ہوئی اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ ابو نے بہت اچھی تقریر لکھ کے دی تھی. نصیر ترابی صاحب کو احساس ہوا کہ تقریر تو میں نے لکھی تھی. خیر،
मुबाहिसों में हिस्सा लेते रहे और बिलाखिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी तीसरी पोजीशन आई। तब भी उन्हें कहा गया कि आज आप अब्बू से कहिएगा आइंदा बहुत अच्छी तकरीर लिख के दे। तो नसीर तुराबी साहब को बड़ा एहसास हुआ कि अगर कोई अच्छी मैं बात कर लेता हूँ, अच्छी मुबाहिसा कर लेता हूँ, तो भी क्रेडिट अब्बू को जाता है, और अगर मेरी वजह से मैं कुछ गलत लिख लेता हूँ या कुछ उसमें कोताही हो जाती है तो वो भी अब्बू के खाते में जाता है। तो क्यों ना मैं अपनी इनफरादियत की तरफ आऊँ। तो फिर उन्होंने शायरी वगैरह शुरू की। ये उन्हीं ने बताया था वाकया वो एक नशिस्त में, जहाँ रज़ा अली आब्दी साहब से भी फिर इसके हवाले से जिक्र हुआ। ये जो मशहूर गज़ल थी जिसका जिक्र हो रहा है वो हम सफ़र था मगर हम नवाई ना थी, तो नसीर तुराबी साहब की ज़मीन में ही एक गज़ल लिखी थी। कुछ दोस्त यही जो मैंने अभी पहले इब्तदाई अल्फाज कहे कि वफ़ात के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा उसको रिसर्च करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, इल्म नहीं होता है। ज़ाहिर है ज़्यादा शिकवा उनसे जो इस शहर में रहते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उस इलाके में रहने वाले भी एक शख्स थे जिनसे हमारी भी शनासाई, वो भी नहीं जानते थे कि ये गज़ल किसकी लिखी हुई थी। तो उन्हीं की ज़मीन में गज़ल लिखी थी उनकी वफ़ात के बाद। उसका सिर्फ एक शेर आपकी नज़र करूँगा इसी मुनासिबत से, जो वो जानते नहीं थे उनके इलाके के। वही तो शहर में था एक मेरे मतलब का, वही तो शहर में था एक मेरे मतलब का, मलाल तो ये था उस तक मेरी रसाई न थी। और नसीर तुराबी साहब के खूबसूरत शेर से मैं इजाज़त चाहूँगा। लिखते हैं, सन्नाटा बोलता है सदा मत लगा नसीर, सन्नाटा बोलता है सदा मत लगा नसीर, आवाज रह गई है समात नहीं रही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तहमीना राव साहिबा, आप आवाज़ सुन सकती हैं हमारी? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तहमीना राव साहिबा, आप जी मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं रास्ते में हूँ, अभी तक घर नहीं पहुँच सकी हूँ, तो मैं सिर्फ शिरकत सुनने की हद तक महदूद रखूँगी आज, और इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में शामिल होंगी। जी बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तारिक मिर्ज़ा साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी, हमारा तारिक मिर्ज़ा साहब से, जो कि एग्ज़ेक्टिव मेंबर हैं सिडनी में हमारे, उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर मोहम्मद अली तलवी साहब से कि इस तकरीब के हवाले से वो हमें अपने ख़यालात से नवाजें। जी, रईस अलवी साहब। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब अफजल अजीज साहब का और आपका आरिफ मजीद साहब और तमाम आपकी अंजुमन का कि आप लोगों ने ये रेफरेंस नसीर तुराबी की याद में मुनक़िद किया। और यकीनन नसीर तुराबी इस कदर अहम थे कि उनके लिए कोई अहम और अच्छा रेफरेंस मुनक़िद होना चाहिए था, और आप लोगों ने इसमें पहल की और ये बहुत अच्छा कदम है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो आप दोनों तमाम हजरात का, आपके अंजुमन का बहुत शुक्रिया, और बहुत हमें फ़ख्र है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा काम कर रहे हैं। नसीर जो थे, नसीर मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से थे, और वो उनका ये था कि
وہ 2-3 باتوں میں بہت ہی منفرد تھے. اول تو یہ کہ وہ کسی شاعرانہ گروہ میں شامل نہیں تھے. شاعروں کے جو گروہ کراچی میں یا لاہور میں یا جہاں بھی ہوتے تھے ان میں وہ کوئی شامل نہیں تھے, اور وہ بالکل اپنے ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتے تھے جب بھی یہاں بھی ہوتے تھے. اور دوسری بات ان کی یہ تھی کہ نصیر بہت صاف کو تھے. کوئی بات کر رہا ہے؟ جی میں نے میوٹ کر دیا. اچھا, تو وہ نصیر جو تھے وہ بہت صاف کو تھے, اور اس سلسلے میں کئی لوگ ان سے مطلب شاکی بھی تھے, شکایت رکھتے تھے. لیکن چونکہ نصیر خلوت پسند بھی تھے اور زیادہ کہیں آنا جانا ان کا نہیں تھا, سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو ان کی ذہنی سطح کو سمجھ سکتے تھے اور ذہنی سطح سے وابستہ تھے وہ لوگ یقیناً ان سے وہ ملتے تھے. اور تیسری بات یہ تھی کہ نصیر میں ایک اور خاص بات آتی تھی کہ وہ غالب سے بہت متاثر تھے, اور غالب کے خاص وہ طرفدار تھے اور حمایتی تھے. اور ان کا پہلا شعری مجموعہ جو عکس فریادی ہے وہ بھی اسی نقش فریادی کے حوالے سے ہے. تو نصیر کی یہ خوبی, ہم سے ان کے مراسم ایسے بہت یونیورسٹی کے زمانے سے تھے, وہ آتے تھے ہمارے گھر بھی آتے تھے, اور ہمارے جب وہ چونکہ قد لمبا تھا ان کا, وہ گیٹ سے کھڑے ہو کے وہاں سے گھنٹی بجا کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. ہمارے بچے اس وقت چھوٹے تھے تو وہ جاتے تھے دیکھتے تھے تو ان کا سر نظر آتا تھا, تو وہ کہتے تھے نصیر چچا آ گئے, نصیر چچا آئے, پکار کے بلاتے. تو وہ بہت چونکہ کم نکلتے تھے رات سے. ابھی بھی ہمارے یہاں آنے سے پہلے, سڈنی آنے سے پہلے ہمارے گھر پہ کئی بار ان کی نشست رہی, دفتر میں بھی کئی بار آتے تھے. اور ان کی طبیعت ناساز تھی اس زمانے میں, تکلیف تھی کچھ پیر میں ان کے, تو پھر بھی وہ, اور لیکن وہ شعر سمجھنا, خاص طور سے کلاسیکل شاعری, اردو کی جو کلاسیکل شاعری تھی اس کے جو استعارے تھے, اس کے جو مفاہیم تھے, وہ اس پہ بہت اچھا ان کی دسترس تھی, اور وہ بات بھی کرتے تھے اس پہ. تو عام شعرا سے آپ اگر شاعری تو سن سکتے ہیں لیکن لٹریچر پہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے, کہ لٹریچر کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن نصیر میں یہ خوبی تھی کہ وہ شاعری کو سمجھتے بھی تھے, اس کی تفہیم بھی تھی, اس کے استعاروں سے, اس کے معنی سے, اس کی معنی خیزی سے واقف تھے, اور بہت اچھی طرح آشنا تھے. تو نہ صرف یہ کہ وہ شعر کہتے تھے بلکہ وہ اردو ادب کے جو شعر ہیں, جو کلاسیکی شاعری ہے, اس سے وہ بہت گہرائی سے وابستہ تھے. اور وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ ان کا گھرانہ جو تھا, جو رشید ترابی صاحب جو تھے, وہ خود چونکہ ان کے ہاں بہت محفلیں ہوتی تھیں اور بہت شعرا جمع ہوتے تھے اور آتے تھے, تو اس لیے وہ شعر ان کے ذہن میں مستقل رہتے تھے اور سنتے تھے, اور ادب اور اس کے بارے میں ان کی واقفیت بہت تھی. اور مجھے یہاں یاد آتا ہے کہ مثلا آپ نے فیض صاحب کے مجموعے میں دیکھا ہوگا کہ ایک مرثیہ بھی شامل ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہے فرمائش پر. تو نصیر نے مجھے بتایا کہ یہ فرمائش ان کے والد رشید ترابی صاحب نے فیض صاحب سے کی تھی کہ آپ مرثیہ بھی لکھیں, آپ نے مرثیہ نہیں لکھا, تو اس پہ انہوں نے وہ مرثیہ لکھا. تو جو شعر کہنے کا ڈھنگ تھا وہ کلاسیکل تھا, وہ اس کی گہرائی سے وہ لفظوں کو سمجھتے تھے, اور اس کی انہی کا جو ان کا ڈکشن جو ہے نصیر کا, وہ بھی کلاسیکل ہے. تو اس طرح ہمارے کم شعرا جو ایسے ہیں جو شاعری بھی کرتے ہیں اور اردو اور فارسی ادب اور شاعری کو گہرائی سے بہت اچھی تہداری سے سمجھتے ہیں. تو یہ نصیر کی خوبی تھی, اور وہ ظاہر ہے کہ کراچی یونیورسٹی سے وابستہ رہے, وہاں سنڈیکیٹ کے ممبر بھی تھے, اور وہ جناب ہمارے ساتھ کافی ان کی نشستیں اور گفتگو رہی. سلیم بھائی, سلیم احمد جو تھے, وہ ان کے ساتھ بھی ان کے یہاں بھی آتے تھے نصیر. تو وہ علم کی تشنگی جو تھی ان کے یہاں بہت تھی, اور وہ چونکہ ان کو گھر سے یہ بات ملی تھی کہ علم جہاں ہو اس کو اپنی میراث سمجھو اور پہنچو, تو وہ پہنچتے تھے اور وہ علم حاصل کرنے کی اس میں رہتے تھے. چونکہ وقت کم ہے, اور تو میں ان کا بس ایک شعر جو ہے وہ سنا دوں آپ سے کہ یہ نصیر شام سپردگی کی اداس سی روشنی, یہ نصیر شام سپردگی
कि उदास उदास सी रोशनी, ये कनारे गुल, जरा देखना ये तुम ही हो या कोई और है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद। आपका तबसरा इस हवाले से मुनफरिद था कि आप उनको ज़ाती सतह पे जानते थे, आप उनके दोस्त थे और आपने उनके ज़ाती पहलुओं पे रोशनी डाली। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। वैसे भी हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हम आपको जब भी दावत देते हैं आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से शिरकत करते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता तकरीब का अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। अब मैं प्रोफेसर रईस अहमद समदानी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस हवाले से वो हमें अपने कुछ ख्याल नवाजें। शुक्रिया आतिफ मजीद साहब। जी मेहरबानी। जनाब अफजल रिजवी साहब, पाफ के दीगर ओहदेदारान, इस महफिल में मौजूद मुअज़्ज़िज़ हजरात, अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नसीर तुराबी के शहर से मेरा ताल्लुक़, और मेरा ही नहीं बल्कि अभी रईस अलवी साहब और अरशद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की, वो भी कराची शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले मुबारकबाद इसलिए कि इसको नसीर तुराबी साहब की वफ़ात के फौरी बाद चंद दिनों में ही अफजल रिजवी साहब ने यह तमाम किया, ये बड़ी बात है। और अल्लाह ताला नसीर तुराबी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह। जैसा कि कहा गया कि नसीर तुराबी साहब एक बहुत बड़े आलिम फाजिल शख्स के बेटे थे, और जब हम किसी शख्सियत के बारे में या किसी भी वाक़े के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो उसके पस मंज़र में भी जानना ज़रूरी होता है। तो मैं समझता हूँ कि नसीर तुराबी साहब के बदन में जो खून दौड़ रहा था वो एक बड़े आलिम और फाजिल शख्स का था, और वो नाम था रशीद तुराबी साहब। मैं पाकिस्तान की उस नस्ल से मेरा ताल्लुक़ है कि मैंने रशीद तुराबी साहब को एक नहीं बेशुमार मजालिस में गुफ्तगू करते देखा, सुना। उनकी काबिलियत से इनकार नहीं किया जा सकता। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे और इलाहाबाद, जामिया इलाहाबाद से उन्होंने फ़लसफ़े में एमए किया था। फिर शायरी शुरू की। वो जो गुफ्तगू किया करते थे, ऐसा लगता था कि जैसे अल्फाज हाथ बांधे उनके सामने खड़े हुए हैं और वो उन अल्फाजों का इस्तेमाल खूबसूरत जुमलों से किया करते थे। इस मौजू पर रशीद तुराबी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वो पाकिस्तान आए, कायद आज़म ने ख़ास तौर से रशीद तुराबी साहब को दावत दी थी पाकिस्तान आने की। एक बात अरशद कुरैशी साहब ने आबिदी साहब के हवाले से जो कही, उसमें कुछ सच्चाई लगती है कि नसीर तुराबी साहब जाकिर नहीं बने। मेरा ख्याल है शायद उसकी वजह भी यही रही हो कि जैसा कि आपने कहा कि अक्सर वो जो तकारीर उन्होंने की, अहबाब ने ये कहा कि ये तो अच्छी, यानी बेटे को अच्छी तकरीर लिख कर दी। तो हम देखते ये हैं कि वो जाकिर नहीं बने बल्कि उनके अंदर और खूबियाँ जो थीं वो बहुत थीं। उनके भाई अल्लामा अकील तुराबी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले और वो पाकिस्तान के नामवर खतीब और जाकिर थे। नसीर तुराबी साहब की शायरी के हवाले से गुफ्तगू यहाँ बहुत हुई। तो जैसा ये बात भी दुरुस्त है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो फिर हम उसके बारे में छानबीन करते हैं कि वो कौन था, क्या उसने किया। तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है।
کیونکہ زندگی میں تو بے شمار لوگ ہیں، بے شمار کام ہے، بے شمار لوگوں کے اوپر کام ہوا ہے. تو مجھے بھی جب افضل رضوی صاحب نے اس بات کی دعوت دی تو میں نے بھی نصیر ترابی صاحب کے بارے میں کچھ چھان پٹک کی. نام تو پہلے سنا تھا اور دیکھا بھی تھا، محفلوں میں بھی دیکھا تھا، بڑے شاعر تھے. جب یہ خاص طور سے ابھی جب ان کا یہ شعر وہ ہم سفر تھا بہت مشہور ہوا، اس وقت ان کا چرچا ہوا. لیکن جب میں نے یہ کتابیں سوچا کہ میں ان پر کتابوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں تو مجھے 2 کتابیں ان کی شعری مجموعے مل گئے، اور اس میں سے جس کا بھی ذکر ہوا عکس فریادی، یہ پہلا مجموعہ ہے جس کا 3را ایڈیشن یہ شائع ہوا ہے، اور یہ مجھے مل گیا. ایک لاریب کا ذکر ابھی نہیں ہوا، ایک شعری مجموعہ ان کا لاریب بھی ہے، جو یہ میرے بیک گراؤنڈ میں ان کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لاریب بھی ان کا ہے. اور اس عکس فریادی کے پیچھے جو شعر تصویر کے ساتھ نصیر ترابی کا ہے، یہ میں چاہوں گا کہ آپ کی نظر کروں. ابھی نگاہ توجہ ادھر نہیں ورنہ وہ دیکھ لے تو ہو چہرہ بھی آئینہ معلوم. شاعری کے حوالے سے گفتگو کافی ہوئی، کئی احباب نے کر دی تو میں اس کو نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. بہت اچھے شاعر تھے، اور جیسے کہ میرے ہم نام رئیس علوی صاحب نے کہا کہ وہ غالب سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور غالب کی زمین میں انہوں نے کئی غزلیں کہی. غالب کے علاوہ بھی انہوں نے کئی احباب سے، انیس سے بہت متاثر تھے، اور ان کی زمین میں بھی ان کی کئی ہوئی غزلیں بے شمار اس میں شامل ہیں. تو میں نے کہا کہ ان کی مطبوعات وہ صرف شاعری نہ تھے، شاعر تو اچھے تھے، لیکن شاعر کے ساتھ ساتھ وہ تاریخ کے بھی طالب علم تھے اور تاریخ دان بھی تھے. تاریخ ترازی ان کی ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ شعریات کے حوالے سے ان کی جو کتاب ہے اس میں شاعری کے علاوہ شاعری کی مختلف اصناف پر انہوں نے سیر حاصل روشنی ڈالی ہے. وہ لغت نویس بھی تھے، یعنی انہوں نے ایک لغت بھی لغت العوام کے نام سے ان کی چھپی ہے، لغت العوام کے نام سے چھپی ہے. تو یہ کتابیں ان کی بے شمار شعریات خاص طور سے بہت مقبول ہوئی اپنے زمانے میں. اسی طریقے سے لاریب اور عکس فریادی بہت مشہور ہوئی. لغت العوام بڑی اچھی، اس کے اندر بے شمار ایسے الفاظ انہوں نے جو ہم گفتگو میں تو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ تحریر میں ہمیں ملتے نہیں ہیں، تو انہوں نے وہ الفاظ اس کے اندر استعمال کیے. تو مجموعی طور پر ان کی کتابوں کی تعداد 6 بنتی ہے، اور وہ تمام کی تمام اس وقت اویلیبل بھی ہیں، مختلف لائبریریز میں مل جاتی ہیں. تو ان گفتگو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور خاص طور سے جیسا کہ کہا گیا کہ وہ شاعر بھی تھے، وہ لغت نویس بھی تھے، وہ تاریخ داں بھی تھے، اور لیکن بہت زیادہ جیسے ہم کہتے ہیں عوامی نہ تھے، مجلسی نہیں تھے. ایسا بھی نہیں کہ گمنامی کی زندگی انہوں نے گزاری، وہ مختلف پروگرام کنڈکٹ کیا کرتے تھے، نظامت کے فرائض بہت خوبصورتی سے سر انجام دیا کرتے تھے. ان الفاظ کے ساتھ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ جو جس اس پر ہم بات کر رہے ہیں اس کا وقت محدود ہوتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ پاف کا شکریہ افضل رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اللہ حافظ. جی بہت ہمارے سندانی صاحب، اور خاص طور پر جن پہلوؤں پہ آپ نے شاعری کے علاوہ ان کی روشنی ڈالی وہ بے شک سیر حاصل گفتگو ہے. طارق مرزا صاحب ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں، سڈنی میں ہوتے ہیں، پالف کے ایگزیکٹو ممبر ہیں. آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آج کی تقریب کے حوالے سے خیالات سے بات کریں.
अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आपने इस सही मौके पर और एक हमारे जो बहुत बड़े शायर थे, आलम थे और एक अदबी शख्सियत थे, उसके लिए इतनी अच्छी एक महफिल का एहतमाम किया। अंसारी, मैं सबसे पहले महफिल में शामिल हुआ था, लेकिन मेरे कोई टेक्निकी मसला था, तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूंगा, सिर्फ 4-5 मिनट ही मैं आपके लूंगा। तो वो मुझे याद है, पुरानी बात है, पीटीवी पे एक दफा उन्होंने क्या किया कि 25-30 साल पुरानी बात है कि जितने भी न्यूज कास्टर थे वो सारे बैठे आपस में गपशप लगा रहे थे और उसमें सरैया शहाब साहब होती थी। तो उन्होंने कहा मैं अपने शेर सुनाऊंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा आप शायरा भी हैं? तो उन्होंने शेर कुछ सुनाए एक दो। उसके बाद अगले जो साहब थे वो खालिद हमीद साहब थे, वो भी एक अच्छे न्यूज कास्टर होते थे। तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप भी कोई शेर सुनाएंगे? उन्होंने कहा नहीं जी, मेरी बीवी जो है ना वो शेर नहीं कहती, इसलिए मैं आपको शेर नहीं सुना सकता। तो सरैया शाह साहब के जो खामद थे अब्दुल हमदानी साहब, वो काफी अच्छे शायर थे। तो मैं सारा कुछ कर चुका था, लेकिन मेरा जो म्यूट सिस्टम था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरा बेटा भी आया तो उसने मुझे ठीक करके दिया। तो मैं आपकी तस्वीरें देख रहा था, आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए उठकर फिर मैं आखिर में चला गया। मैं देख रहा हूँ कि सिडनी से हमारे दोस्त और डॉक्टर रईस अलवी साहब भी वहाँ मौजूद हैं। मेरी तरफ से डॉक्टर साहब बहुत अस्सलाम वालेकुम, और डॉक्टर रईस समदानी साहब आपको भी बहुत सलाम हो, और अफजल रिजवी साहब और आतिफ मजीद साहब, बहुत आप शुक्रिया आपने कि इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से इस महफिल का एहतमाम किया। जहाँ तक नसीर तराबी साहब का है, उनसे हमारी 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। वो यहाँ पर तशरीफ लाए थे ऑस्ट्रेलिया में, और हमने उर्दू इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से उनको यहाँ पर इनवाइट किया था। तो उससे पहले खैर मैं इतना वाकिफ नहीं था, थोड़ा बहुत सुना हुआ था, लेकिन उसके बाद जो उनकी शख्सियत का जो एक तिलिस्म है वो अभी तक मेरे ज़हन दिल पर कायम है और वो हमेशा रहेगा। जैसा कि इसमें तो काफ़ी मैंने देखा है कि काफ़ी तफसील से बात हो चुकी है, मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात करूंगा कि वो उनका जो बैकग्राउंड है वो हैदराबाद दक्कन से था, वहाँ पैदा हुए हैं, उसके बाद बचपन में यहाँ आ गए। और फिर रशीद तराबी साहब जो है ना, वो उनको मैं खुद भी बहुत उनका मैं मानने वालों में से हूँ, और उनको मैं सुनता भी रहता था, पढ़ता भी रहता हूँ। तो उनके वो बेटे थे, और उस हवाले से उनका एक खानदान जो है वो इल्म और अदब के हवाले से बहुत एक आला मकाम का हामिल था। खासतौर पर उनके वालिद साहब जो थे, ये भी एक बेटे के लिए हमेशा एक मुश्किल होता है कि जब बाप एक इंतहाई आला मकाम पर हो तो बेटा जो है वो उस लेवल पर पहुंचना और अपने बाप के नाम को कायम और दायम रखना और अपने आप को मनवाना मुश्किल होता है। जैसे अशफाक अहमद के बारे में कहा जाता था कि बानो कुदसिया के हवाले से कि लोग, अशफाक अहमद इतना बड़ा तनावर दरख्त थे कि बानो कुदसिया उसके नीचे जो है ना थोड़ी सी छुप कर रह गई थी, हालांकि वो खुद बहुत बड़ी शख्सियत थी। लेकिन एक ही घर में होने के बावजूद जब अशफाक अहमद अदबी महफिलें मुनक्किद करते थे तो बानो आपा जो है चाय बनाकर पेश कर रही होती थी, हालांकि वो उनसे कम नहीं थी। मतलब यह है कि बहुत बड़ी अदबी शख्सियत थी। तो एक घर में 2 बाप और बेटा भी हों तो बड़ा एक फर्क पड़ता है। तो इनका कहना ये था, मैंने पढ़ा था कि बल्कि एक दफा बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैंने शुरू में तकरीरें शुरू की एज ए जिक्र के हवाले से, जाकर के तौर पर, और जब स्कूल में जब की तो फिर मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब का इतना ऊंचा नाम है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है ना बहुत ज्यादा थी। तो कहते हैं कि मैं अगर 3rd आता था तो लोग कहते थे कि अपने बाप का नाम खराब कर रहे हो, और अगर अव्वल आता था तो कहते थे कि क्यों ना हो, किस बाप का बेटा है। तो कहते थे मैं जाऊं तो जाऊंगा। तो दोनों सूरतों में तो उन्होंने कहा, मैंने फिर दूसरा रास्ता इख्तियार किया और मैंने शायरी शुरू कर दी। और शायरी जो थी वो एक अलग फील्ड था जिसमें वो उन्होंने अपना जगह भी बनाई। और उनके जो शेर मैंने जहाँ तक पढ़े हैं, डॉक्टर रईस अलवी साहब, मैंने नोट किया है कि उनकी शायरी जो है काफी मुनफरिद और जदीद शायरी में उन्होंने एक अपना खास जो है ना नाम बनाया। इस तरह की शायरी जो है वो उसमें एक ट्रेंड उन्होंने कायम किया, लेकिन उसमें रवायत भी है और जदीदियत जो है वो भी शामिल है। जैसे एक 2 शेर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ।
ना अपना रंज न औरों का दुख न तेरा मलाल, ना अपना रंज न औरों का दुख न तेरा मलाल, शबे फराक कभी हमने यूं गंवाई न थी। वाह बिछड़ते वक्त वाह वाह वाह। बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल, बिछड़ते वक्त उन आंखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी और को अभी सुनाई ना थी। क्या वाह, खूबसूरत शेर है। बहुत खूबसूरत, क्या बात बहुत है। इरशाद इरशाद। इतने अच्छे शेर हैं, मतलब जैसे लगता है कि दिल के अंदर जाके वो खुबते हैं। तो ये इनकी खास खूबी थी। और मतलब यहाँ पर मैंने उनकी जब सिडनी में वो तशरीफ लाए थे तो हमने मुशायरा तो उनका सुना था, फिर उसकी निजी महफिलों में भी उनकी शायरी सुनी थी। तो जो मेरे अपने तसरात हैं, मैं देखे ना मेरे सामने इतने बड़े माशाल्लाह स्कॉलर बैठे हुए हैं, मैं उनके हवाले से वो अदबी और गुफ्तगू के हवाले से ज्यादा मैं अपने जो तसरात है वो मैं बयान कर रहा हूँ। मैंने जो रिजवी साहब जो एक बात उनमें ये भी नोट की थी कि वो जो नए शुरा हैं, जो उनसे नीचे वाले या जो यंग हैं लोग, उनकी हौसला अफजाई करने वालों लोगों में शामिल थे वो। ये इसका मेरा मुझे जाती तजर्बा भी है, और उन्होंने मेरे साथ जिस तरह शफकत और मोहब्बत का इजहार किया था वो मुझे अभी तक याद है। हालांकि ये वस्त जो है ना, आपको पता है कि शुरा में शुरा जितने भी बड़े हो जाएं वो हमेशा जो है ना, वो बड़ा होने का एक तरीका ये होता है कि दूसरों को नीचे दबाते जाओ और खुद अपना नाम बेशक हो, लेकिन दूसरों को प्रेस करते जाओ, शायद इसमें ज्यादा बढ़ाई उनको नजर आती है। लेकिन वो बिल्कुल उनमें सही। नहीं थे। और वो मैंने देखा कि हौसला अफजाई करने वालों में थे। उनकी शख्सियत के अंदर एक मजहबी जो उनसर था, इखलाकी उनसर जो था, और शफकत और मोहब्बत वाला जो उनसर था वो बहुत नुमाया था। तो एक ये भी उनकी खूबियों में शामिल था। और दूसरा जो है उनकी नसर, नज्म, अच्छा मरसिया और दूसरे जो मनकबत, ये सारे मैदानों में उन्होंने अपना हुनर आजमाया और हर इस मैदान में अपने आप को बनवाया, और किसी में भी वो ऐसी पीछे किसी से काम नहीं रहे, और बहुत अच्छा उसमें शायरी की। खास तौर पर इस मेरे ख्याल में पहले जिक्र हो चुका होगा, उनका जो गीत है वो जो उन्होंने ड्रामे के लिए गलबन लिखा था, या ड्रामे में वो बाद में असल में शामिल किया गया, वो बहुत पहले उन्होंने लिखा था। ये कहा जाता है कि वो जो गीत था वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छांव का आलम रहा जुदाई न थी, न अपना रंज न औरों का दुख न तेरा मलाल, शबे फराक कभी हमने यूं गंवाई न थी। ये बताया जाता है कि ये उन्होंने बांग्लादेश जो साबिक मशरकी पाकिस्तान है उस हवाले से उन्होंने ये लिखा था। बाद में ये मुख्तलिफ सिंगर्स ने इस पर तबाज़ुमाई की, और फिर ज्यादा मशहूर उस वक्त हुआ जब ये एक ड्रामे का टाइटल सॉन्ग बनाया गया। तो ये इतना मशहूर सॉन्ग है, ये इतना अच्छी नज़म है, ये इतनी अच्छी आला पाए की शायरी है कि अगर बाकी सारी शायरी उनकी जो है वो अगर ना भी किसी ने सुनी हो, तो खाली एक नज़म जो है ये उनकी पहचान है, ये एक गजल जो है उनकी पहचान बन गई है। और एक जो शेर है वो नाकाबिले फरामोश है। तो दोस्तों के हवाले से भी उनका मैंने देखा है कि एक शायर तो और भी बहुत सारे, पिछले दिनों में डॉक्टर रईस अलवी साहब आगे पीछे जो खबरें आ रही हैं, कभी एक शख्सियत जो है वो हमें छोड़ के चली गई, कभी दूसरी चली गई, आगे पीछे जो मौत की खबरें आ रही हैं, बहुत दुख की बात है उसमें, ये भी खबर है। लेकिन इनके हवाले से इनके जाने के बाद जो अदबी दुनिया में, ये पूरे एक पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, या जहाँ जहाँ उर्दू में लोग बोलते और समझते हैं, जो लोगों का रिस्पांस था, जो मोहब्बत का इजहार था और जो उनकी अकीदत का इजहार था, ये भी किसी किसी को नसीब होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी उनकी एक शख्सियत का करिश्मा था। बस यही है, मैं चंद एक चीजें जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा था। खास तौर पर जो आप साथियों ने इस मौके पर जिस महफिल का इनेकाद किया, और उन्हें भी याद किया, और हमें आपस में भी मिल बैठने का, एक दूसरे से अपने ख्यालात का जो है वो तबादला ख्याल करने का मौका दिया। जैसे शहर से आपने दुनिया पूरी को एक तरह मिलाया हुआ है आप, और मैं अभी आपका साथी हूँ, इंशाल्लाह इन चीजों को आगे और बढ़ाते रहेंगे। आप सबका तारिक साहब, ये जरा थोड़ा सा जो हम सफर वाली है, ये जरा थोड़ी सी सुना दे तो अच्छा लगेगा चलते चलते। जी सुनिए, मैं बिल्कुल, मेरे सामने ये मौजूद है। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छांव का आलम रहा जुदाई न थी,
न अपना रंज न औरों का दुख न तेरा मलाल, शबे फराक कभी हमने यूं गंवाई न थी। सफर इस तरह भी गुजरा, मोहब्बतों का सफर इस तरह भी गुजरा, शिकस्ता दिल थे मुसाफिर शिकस्ता पाई न थी। अदावतें थी तगाफल था रंजिशें थी बहुत, अदावतें थी तगाफल था रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफाई न थी। बिछड़ते वक्त इन आंखों में थी हमारी गजल, बिछड़ते वक्त इन आंखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। ये शेर मैंने पहले भी सुना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, ये ड्रामे की जान थी ये इनका। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये बहुत मशहूर हुआ है ये, इसी वजह से बाद लोगों ने ड्रामा देखा है और बाद में खैर वो ड्रामे के अलावा भी इसकी अपनी एक पहचान है। ये कलाम ऐसा है कि कभी भी अगर ड्रामे में ना भी होता तो फिर भी ये वो जिंदा जावेद कलाम है, बेशक 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 प्रमोट नहीं किया जा सकता था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके जो भी अमाल थे, जो भी उनके मरतबत लिखी, जो उन्होंने हम्द लिखी, जो नातें लिखी, जो जिक्र किया और जो इस तरह की महफिलें अटेंड की, वो सारी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनको हम सब के लिए एक मिशलरा बनने का हमें मौका दे। आमीन। बहुत आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया तारिक मिर्जा साहब। जज़ाकल्लाह। और आखिर में ख़वातीन हज़रात में सदर पाल जनाब डॉक्टर अफजल रज़वी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इख्तितामी कलमात से हमें नवाजें और उसके बाद हम तकरीब का इख्तिताम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। चाहिए तो ये था कि प्रोग्राम की इब्तिदा में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन तकनीकी मामला चल रहे थे, बैकग्राउंड में मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ रहा था, कोई बात राब्ता भी करना पड़ता है इधर उधर। देर आए दुरुस्त आए। आपकी बहुत नवाजिश की, आप सब ने वक्त निकाला। मोहतरमा वासिया सुल्ताना नूरी साहिबा शिकागो से, अदनान मिर्ज़ा साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सके न्यूजीलैंड से, डॉक्टर मुफज्जल महिउद्दीन जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, बड़े अच्छे ख्यालात से उन्होंने नवाजा, डॉक्टर मोहसिन अली आरजू हमेशा की तरह आज भी उन्होंने अपने शायराना अंदाज में खराज तहसीन पेश किया जनाब नसीर तुराबी साहब को, तारिक मिर्ज़ा साहब ने भी अच्छी सैर असल गुफ्तगू की है। अरशद कुरैशी साहब जो हम समाज के डायरेक्टर हैं, उनकी गुफ्तगू इस हवाले से अहमियत की हामिल रही कि वो ज़ाती तौर पर नसीर तुराबी साहब को जानते थे। मैं प्रोग्राम से पहले मुझे मौका मिला जनाब प्रोफेसर मोहम्मद रईस अलवी साहब से नसीर तुराबी साहब के बारे में गुफ्तगू करने का, तो वो फरमा रहे थे कि भाई उनके साथ तो ऐसे था जैसे दोस्ताना होता है कि वो मेरे घर आया करते थे, मैं उनके यहाँ जाया करता था, हमारी महफिलें जमती थी, गुफ्तो शनीद होती थी और लंबी चौड़ी जो है वो बातें हुआ करती थी। तो मैंने मुनासिब समझा कि इन्हीं हजरात को जो है वो ज़्यादा वक्त दिया जाए कि वो अपने ख्यालात आदिया से नवाजें। और जहाँ तक प्रोफेसर डॉक्टर रईस अहमद समदानी साहब का ताल्लुक़ है, तो माशाल्लाह वो तो इल्म का एक ज़ख़ीरा हैं। कोई मौजू ले लीजिए, कोई शख्सियत ले लीजिए, आपके यहाँ किताब भी उस मौजू पर मौजूद होती है और आपकी तहरीर भी अक्सर शोरा और अदबा के हवाले से कहीं ना कहीं शाये हो चुकी होती है। अब मेरे पास मुझे आज अपनी कम इल्मी का एहसास हो रहा था कि मैं नसीर तुराबी साहब से ज़िंदगी में कभी मिला भी नहीं और सच्ची बात ये है कि मैंने उनका कलाम जो है वो पढ़ा भी नहीं। तो मुझे ये था कि मैं क्या बात करूँगा, और जब रईस अलवी साहब और रईस समदानी साहब अपनी गुफ्तगू फरमा रहे होंगे तो मैं किस तरह से बात कर पाऊँगा। तो साथ ही साथ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल
जनाब ज़की खान साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ। आज वो हमारे यहाँ मीडिया रूम में मौजूद नहीं हैं, अपने घर से वो ऑनलाइन हैं। और हमारी सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी मौजूद हैं ख़वातीन की, सादिया नासिर अली साहिबा, मैं स्क्रीन पे उनको देख सकता हूँ। हमारी सेक्रेटरी नशर व इशाअत खौला सैयद साहब भी मौजूद हैं। हमारी प्रोग्राम इवेंट मैनेजर असमा मोहम्मद भी मेलबर्न से हमारे साथ हैं। तो काफ़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आज बुनियादी जो मरकज़ी ओहदेदारान हैं, और तारिक मिर्ज़ा साहब हमारे एग्जेक्टिव मेंबर हैं, और एक और हमारी एग्जेक्टिव मेंबर सिडनी से, वो भी ऑनलाइन हैं, मोहतरमा तहमीना साहिबा। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे 2-4 बातें बस गुज़ार करनी हैं। ज़िक्र किया यहाँ प्रोफेसर अलवी साहब ने कि प्रोफेसर अलवी साहब ने या प्रोफेसर समदानी साहब ने कि वो गालिब से बड़े मुतासर थे। तो ये वाकई में ऐसा ही है। गालिब की एक बड़ी मशहूर गज़ल है कि कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है। अच्छा, गालिब ने ये गज़ल छोटी बहर में लिखी थी, लेकिन नसीर तुराबी ने इसी मजमून को एक बड़ी बहर में उठाया, और नसीर तुराबी ने इस जो मजमून था उसका इजहार यूं किया, तुझे क्या खबर मेरे बेखबर मरासला कोई और है। तुझे क्या खबर मेरे बेखबर मरासला कोई और है, जो मुझी को मुझसे बहम करे वो गुरेज पा कोई और है। मेरे मौसमों के भी थे, मेरे बरगोबार ही और थे, मगर अब रवश है अलग मिलने की तरह मुझसे, मगर अब रवश है अलग मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता। तो ये इनका था, लेकिन साथ ही साथ ये जो लंबी बहर थी, इसमें एक कराची के बड़े मारूफ शायर हैं, गुज़श्ता दिनों मेरी उनसे बात भी हुई थी, सलीम कौसर साहब। उन्होंने भी इसी बहर में तबाह आजमाई की है। सलीम कौसर ने कहा कि मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे कोई और है। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। अरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मुमासलतें शोरा की यहाँ होती हैं, और एक शायर दूसरे शायर से मुतासर भी नज़र आता है, और उसकी बहर में बात करना भी अपने लिए एजाज़ समझता है। लेकिन नसीर तुराबी साहब के हवाले से जो ख़ास बात है वो ये है कि 1945 में पैदा हुए, और वो खुद कहते हैं कि मैंने शायरी जो है वो 1962 में शुरू की, जब उनकी उम्र कोई 17-18 साल थी। और पहले तज़किरा हो चुका कि नसीर तुराबी साहब जो हैं वो मुबासों में हिस्सा लिया करते थे। तारिक मिर्ज़ा साहब ने भी इस पे बात की, और दीगर मेरे मोहतरम मुकर्रीन ने भी इस पे इजहार ख्याल किया। लेकिन असल गौरतलब बात जो है वो ये है कि 62 से लेके 2000 तक ग़ालिबन ये 38 साल बनते हैं। तो 38 साल में तक वो मशक़े सुखन करते रहे, कोई किताब कहीं शाये नहीं हुई। उनकी गज़लें नज़में जो हैं वो अवामन नास में नहीं आईं, लेकिन उनकी वो गज़ल जिसका हवाला सभी दे रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने उनके इंतकाल के ऊपर लिखा कि ये इस गज़ल की ये जो गज़ल है ये उनकी शोहरत का ज़रिया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं, वो इससे बड़े आलिम थे, वो इससे बड़े शायर थे। ये तो एक मामूली गज़ल थी जो टेलीविज़न ड्रामा ने पिक कर ली और उसका टाइटल चल गया, और लेकिन वो इससे कहीं आगे थे। वो कहा करते थे, उन्होंने 2017 में एक इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आपने इतना लंबा अरसा जो है वो आप शायरी करते रहे, लेकिन आपकी किताब जो है अक्स फरियादी वो 2000 में मनसा शहूद पर आई, तो इसके पीछे राज क्या था? तो नसीर तुराबी साहब ने कहा कि देखिए, शायरी करना एक फन है। बहुत सारे लोग शेर कहते हैं, वो मशहूर भी हो जाते हैं, वक्त उन्हें उठाकर ऊपर भी कर देता है, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से पर्दा करते हैं, साथ ही वो भी पर्दा कर जाते हैं।
اور ان کا کلام بھی پردہ کر جاتا ہے. تو میرے والد گرامی، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے شاعری کا آغاز کر ہی دیا ہے تو ایسے لکھو کہ تم دنیا سے چلے جاؤ لیکن تمہارا کلام زندہ رہے. بے شک، بے تو شک. اس میں کوئی شک نہیں کہ نصیر ترابی آج دنیا میں نہیں، لیکن آج ہم یہاں، میرا خیال ہے کہ یہ پہلا فورم ہے جس پر ہم ان کے لیے تعزیت ریفرنس جو ہے کر رہے ہیں. میں عرض کروں کہ ایک اور زمین میں احمد فراز نے ایک غزل کہی تھی، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. اور دیکھیے نصیر ترابی اس کے اوپر آپ اپنے الفاظ کو کس طرح مجتمع کرتے ہیں. فرماتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے، دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے، یہ بھی آزاد چلا جائے گا جاتے جاتے. تو میں شاید ان کی فکر میں، ان کی سوچ میں، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں کہیں یہ بات تھی کہ بھئی اس دنیا سے پردہ تو کرنا ہے، اور یہ شعر جو ہے ان کی اس دنیا سے چلے جانے کی بھرپور عکاسی اور غمازی کرتا ہے. پھر یہی جو ردیف قافیہ ہے اس کے اوپر جو ہے شان الحق حقی کی ایک معروف غزل بھی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ تم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے. تو یہ ایک ہی ردیف، بہر اور قافیہ ہے جس کو تینوں دنیا کے ان معروف شعراء نے ایک ساتھ جو ہے باندھا ہے. اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت نصیر ترابی صاحب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے اور انہیں جنت بلند مقام عطا فرمائے، اور ان کے کلام کی جو اچھائیاں ہیں انہیں عام کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہم کو یہ کر سکیں. انشاءاللہ میں گزارش کروں گا اپنے آج کے سپیکر سے کہ اگر وہ ان کے بارے میں کوئی ایک چھوٹا چھوٹا پیپر لکھ سکیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک کتابی شکل میں جو ہے پبلش کریں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اگر بہت شکریہ. اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کسی کا نام نہ لیا جا سکا ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. افضل رضوی صاحب, can I say something? ایک جملہ مجھے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں اس پروگرام میں شامل نہیں ہوتی تو مجھے بڑا افسوس ہوتا. جی بہت آپ کا بہت 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 شکریہ. میں بتا نہیں سکتی کس قدر خوشی محسوس ہو رہی ہے. اتنا بڑا شاعر تھا, مگر ایک بات مجھے اور کہنے دیجئے کہ ہم مردہ پرست لوگ ہیں. ہم زندگی میں ان کو وہ مقام نہیں عطا کرتے جسے ان کو ملنا چاہیے. سلطانہ غوثیہ نوری صاحبہ, آپ کی بالکل بجا ہے بات, لیکن نصیر ترابی صاحب ان لوگوں میں ہیں خوش قسمتی سے کہ جنہیں ان کی زندگی میں بھی مقام ملا ہے اور بعد از رحلت بھی وہ یاد کیے جا رہے ہیں. شاید یہ میری کم آئیگی ہے پر عموماً یہ دیکھا گیا ہے. جی 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 بالکل, میں نے یہی عرض کیا کہ آپ بجا فرما رہی ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے عموماً کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے یاد کرتے ہیں, لیکن نصیر ترابی کا معاملہ اس سے مختلف تھا. تو لیکن یہ ہے جیسے پہلے یہاں کہا گیا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے والد گرامی کے سائے تلے دب کر رہ جائیں, تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا. تو اب ہم جو ہے بہت شکریہ, 10-15 منٹ جو ہیں سب خواتین و حضرات کو دے دیتے ہیں. اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے, آپس میں کوئی چیز شیئر کرنی ہے تو کر سکتے ہیں. میری طرف سے اجازت. جی بہت شکریہ افضل صاحب. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یا تو ہم مائک اوپن کر دیتے ہیں, ویسے تو آج کی شام ایسے ہی ہے جیسے ان کے جاننے والے, ان کے شاگردوں نے, ان کے دوستوں نے ان کے حوالے سے کوئی بات چیت کی. یوں ہی لگا کہ جیسے سب ایک محفل میں بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم مائک اب اوپن کیے دیتے ہیں, آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں, نہیں تو میرے پاس ان کی وہ جو مشہور نظم ہے, غزل ہے جو مشہور ہوئی ہے, ہم وہ بیک گراؤنڈ میں پلے کر دیتے ہیں اور محفل کا اختتام کر دیتے ہیں. عاطف صاحب آپ اختتام کریں گے اس پروگرام کا. میں آج کی بزم کے حوالے سے نصیر ترابی کے 2 شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ عکس فریادی کے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو.
ये जनाब अत्से फरियादी में आज की जो बज़्म थी, हो सकता है उन्होंने इसी के हवाले से कहा हो, बज़्म वालों ये बज़्म आराई, बज़्म वालों ये बज़्म आराई, तुम ही देखो मुझे तो नींद आई, देखो मुझे तो नींद आई, मेरे होने से एक रौनक थी, कहते हैं मेरे होने से एक रौनक थी, अब किसे पूछती है रुसवाई, अब किसे पूछती है रुसवाई। बस ये मैंने कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत अच्छी महफिल आप लोगों ने आरास्ता की। आरिफ मजीद साहब बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी तरह से बज़्म को सजाते हैं और बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं। और अफजल साहब ने बहुत कमाल किया, जैसा कि सब कह रहे हैं और ये सब देखा जा रहा है, ये पहला रेफरेंस है जो नसीर तुराबी के सिलसिले में मुनक़िद हुआ है। और नसीर तुराबी के बारे में बात बहुत की जा सकती है, बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, क्योंकि उनकी शायरी का जो कि जेहते हैं वो बहुत हैं, उनकी शायरी की जेहत बहुत है, उसमें एक डेप्थ है, गहराई है। और उनके अगर शायरी के सिर्फ लफ्ज़ों ही पे आप गुफ्तगू करेंगे तो एक लंबी गुफ्तगू हो सकती है, और फिर ख्याल और फिर अदायगी और उसलूब के बारे में जो गुफ्तगू है वो भी बहुत लंबी। लेकिन हम ये समझते हैं कि नसीर इस वक्त एक मुनफरिद शायर थे, बिल्कुल मुनफरिद शायर थे। और तमाम शोरा जो मौजूद हैं सब बड़े शोरा हैं, सब अपनी अपनी जगह पर बड़ा मुकाम रखते हैं, लेकिन नसीर जो हैं वो एक बिल्कुल अलग अपना मुकाम रखते हैं। ये एक फ़र्क है। बड़ा होना अपनी जगह पे दुरुस्त है, कोई भी हो सकता है जो समझता हो या है बड़ा है, लेकिन नसीर एक अलग जगह पे खड़े हुए, ही स्टैंड आउट कहते हैं, तो वो अलग बिल्कुल खड़े हुए। और ये उन्होंने आज से नहीं, ये उन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने से जब से शेर कहना शुरू किया उस वक्त से उन्होंने ये अपनी को एक अलहदा शायर के तौर पे पेश करना शुरू किया। और इसीलिए वो शायरों के जो गिरोह हैं, जो ग्रुप्स हैं, उसमें किसी में शामिल नहीं हुए और न किसी ने उन्हें शामिल किया, न शामिल कर सकता था कोई। तो इसलिए वो अपनी इंफरादियत जो है वो आखिर तक उन्होंने कायम रखी, और बहुत खूबसूरती से और बहुत ताजगी से और बहुत इस्तेहकाम से, मुस्तहकम तरीके से उन्होंने उर्दू ज़बान की खिदमत में अपना वक्त सर्फ किया। और हम उनके ज़िंदगी के उसलूब को आज के दौर में कामयाब पाते हैं। उनकी ज़िंदगी का उसलूब आजकल मौजूद नहीं है, क्योंकि आज के दौर में सब एक दूसरे को के सामने हाँ मिलाते हैं, और लेकिन नसीर ऐसे नहीं थे, उनका उसलूब बिल्कुल ज़िंदगी का सबसे मुख्तलिफ था। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये एहतमाम किया, और इस एहतमाम के लिए मैं यकीनन आप लोगों को मुबारकबाद के मुस्तहक समझता हूँ। और बहुत कहना चाहिए कि आपने अदब को जिस तरह से ग्रिप किया, ये जो मैग्नेटिक तरीके से आपने उठाया है, जो मैग्नेट जैसे उठाता है, ऐसे आपने नसीर तुराबी को पाकिस्तान से उठाया। ये बहुत बड़ा कमाल है आपका कि आपने देखा और ऐसा किया। तो हम आपके शुक्रगुजार भी हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नसीर के दोस्त की हैसियत से हम आपके बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। रईस साहब, एक तो आपके अल्फाज का बहुत शुक्रिया। दूसरा, मैं आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि आज की होने वाली इस तकरीब को 1 या 2 दिन में हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी नशर कर देंगे। इस तरह से हमेशा के लिए जो लोग उनके बारे में कुछ सुनना जानना चाहते हैं, तो वो इस तकरीब को, इसकी रिकॉर्डिंग देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके बारे में। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे इसको नशर कर देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आतिफ मजीद साहब, आपने जिस तरह से इनवाइट भी किया था और फिर भी आप जिस तरह से कंडक्ट किया, आपने बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। अब्दुल रिजवी साहब, आपकी सारी टीम जो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद भी हो और शुक्रिया भी कि आपने इतनी इज्जत और आनत से हम सबको अपने साथ शामिल रखा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया साहब। आपका भी खासतौर पे अफजल रिजवी साहब ने जिक्र किया कि आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया। चलें जी, तकरीब का बस अब इख्तिताम करते हैं और आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।
सुभान
रखा था ना आपने, चेक नहीं किया? दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी। तो आ गई नहीं, ये यहाँ तक सही था।